Hi everyone, I welcome you to my small digital space. So, in this video, I will be covering Union Budget of 2026-27. I will be only focusing on the topics which are relevant for students preparing for CA, CS or CMA. So before I start this video, you might be thinking why I'm not showing my face or telling my name. So as of now, I'm not comfortable to disclose all these. So hope you understand and cooperate. No face, no name, just real thoughts. And if you are visiting my channel for the very first time, so please subscribe to my channel for daily motivation, study tips, study content and whatnot. And you can also follow me on Instagram. I will be dividing this video into 4 parts, that is basic introduction about budget, corporate mitra, changes in syllabus and conclusion. So let's just start this video. So before I start analyzing budget, you should know these basic about budget. So as per article 112 of Constitution of India, Union Budget is known as annual financial statement, that is in short we can say AFS. It is made through estimation of government expenditure and receipts, and every year on 1st Feb at 11 am it is presented by our finance minister and it will be applicable for upcoming year. So for now the budget will be applicable for from 1st April 2026 to 31st March 2027, and as of now Morarji Desai ji presented the union budget the highest number of times, that is 10 times, and Nirmala Sitharaman ji has presented it 9 times, second highest. So these are the basic information about budget that we all should know. I will be talking about corporate mitra. तो आपने तो सुना ही होगा कि अब CA, CS, CMA वालों को corporate mitra बोला गया. तो what it really means? So let me explain you. Are all 3 institutes ICSI, ICAI and ICMAI will now launch 2 courses, that is para-professional course in which आपको para compliance सिखाया जाएगा, and second is practical training. And as you all know about Tier 1 cities, DKMC, Delhi, Calcutta, Mumbai, Chennai, and Tier 2 and Tier 3 cities. तो Tier 2 and Tier 3 cities में जो लोग सिर्फ ग्रेजुएट हैं या जिनके CA, CS, CMA में अटेम्प्ट्स लग जाते हैं और वो क्लियर नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये कोर्सेज है ताकि ये लोग क्वालिफाइड CA, CS, CMA को असिस्टेंस दे पाएँ एंड इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं वो लोग भी अपना काम इजीली डेलीगेट कर पाएंगे. एंड अगर आपको लगता है इससे स्कोप कम हो रहा है या कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, तो लेट मी टेल यू ऐसा कुछ भी नहीं है. ये बस क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को असिस्टेंस देने के लिए है. इससे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की वैल्यू और इंक्रीज होगी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए. एंड जहाँ Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में जहाँ पे लोग काम करने के लिए नहीं मिलते, उन सिटीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है. आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू अबाउट कॉर्पोरेट मित्रा एंड होप आपको समझ आया हो. सो नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू द कोर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ चेंजेस इन सिलेबस. सो लेट मी टेल यू कि जो भी चेंजेस मैं आपको बताने वाली हूँ वो एप्लीकेबल होंगे फ्रॉम December 26 एंड ऑनवर्ड्स. तो December 26 में अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो आपके लिए ये सारे चेंजेस एप्लीकेबल हैं. एंड ये सारे चेंजेस CS एग्जीक्यूटिव के लिए के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी. एंड अगर आप एक CA, CMA वाले स्टूडेंट हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, सो आप भी इस वीडियो को आगे देख सकते हैं. सो मेजर चेंजेस CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स में आए हैं, दैट इज़ CMSL, ECIPL एंड टैक्स. तो मैं आपको तीनों सब्जेक्ट्स के एक अलग अलग बताऊंगी. सो फर्स्ट आई विल बी कवरिंग द चेंजेस इन CMSL, दैट इज़ कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज़ लॉ. तो इसमें कुछ चेंजेस हैं जो कि मतलब कुछ टॉपिक्स में चेंजेस हैं जो कि कॉमन है इन टैक्स एंड CMSL. तो आई विल बी कवरिंग दैट कॉमन टॉपिक्स विद टैक्स ऑल्सो. सो अभी तो मैं आपको बस एक वो
टॉपिक बता देती हूँ, दैट इज़ STT। तो आपने नोटिस किया होगा कि वैसे तो संडे को स्टॉक मार्केट बंद रहता है, बट 1 फेब को मार्केट पहली बार शेयर मार्केट ओपन हुआ था, और ओपन होने के बाद वो बहुत डाउन गया था। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वेन एवर यू बाय और सेल सिक्योरिटीज इन स्टॉक मार्केट, आपको एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट देना पड़ता है, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट का एक पार्ट होता है STT, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तो ये आप दोनों में पढ़ोगे, टैक्स में भी और CMSL में भी। तो ये जो STT है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, तो इसमें जो फ्यूचर्स में पहले जो कॉस्ट थी वो थी 0.02%, जो कि अब बढ़कर 0.05% हो गई है, एंड ऑप्शंस में भी ये बढ़ गया है। तो इससे क्या हुआ कि इससे लोग अब डेरिवेटिव ट्रेडिंग कम करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटीज़ मार्केट में ट्रेड करने की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो गई है। तो कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई तो आपका प्रॉफिट भी कम हो गया है। तो इस वजह से अब डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में कम हो जाएगी, और इस वजह से मार्केट डाउन भी चला गया था। सो दिस वॉज द चेंज इन STT की परसेंटेज चेंज हुआ है। पहले 0.02% था, जो कि अब बढ़कर 0.05% हो गया है। CMSL में और भी बाकी मतलब 1-2 टॉपिक्स में चेंज हैं, जो कि मैं टेक्स्ट के साथ उनको कवर कर लूँगी। नाउ आई विल बी कवरिंग ECIPL, इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। तो इसमें भी कम से कम 4 से 5 चेंजेस हैं, 4 चेंजेस हैं। तो सबसे पहला चेंज है अपना FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, चैप्टर 2। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। तो चैप्टर 2 में ECIPL में आपने पढ़ा होगा कि FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, में कंडीशंस थी इन्वेस्टमेंट करने की। तो ऐसा है कि अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टर को अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट थी। तो वो लिमिट 2 टाइप की थी, इंडिविजुअली एंड एग्रीगेट। तो पहले इंडिविजुअल की लिमिट थी 5%, जो कि अब इंक्रीज़ होकर 10% हो गई है, और एग्रीगेट में पहले लिमिट थी 10%, जो कि अब इंक्रीज़ होकर 24% हो गई है। तो इससे क्या हुआ है कि इससे FDI इंक्रीज़ होगा, एंड ये लिमिट्स भी इंक्रीज़ हो गई हैं। सो लिमिट्स चेंज होने की वजह से या लिमिट्स इंक्रीज़ होने की वजह से FDI इंक्रीज़ होगा, एंड इंडिया में और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। So now let's just talk about second change, that is foreign direct investment. Any person resident outside India can direct invest in India through Portfolio Investment Scheme, PIS. Before there were certain rules and restrictions, but now person resident outside India can directly invest through पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो पहले अगर किसी जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है उसे इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो उसके ऊपर सर्टेन रूल्स थे, रेस्ट्रिक्शंस थे, बट नाउ वो रेसिडेंट डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया में थ्रू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। सो नाउ द थर्ड चेंज, so if you have any non-immovable property outside India below the cost of 20 lakhs, तो आपको गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है विदिन 6 months, एंड आप पर फिर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। एंड अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो आपके ऊपर सर्टेन एक्ट्स लग सकते हैं, जैसे PMLA, इनकम टैक्स, PBTA। तो बजट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम अप्रैल, सो 6 months का पीरियड वहाँ से काउंट होगा। द फोर्थ चेंज इन FTP, सो इफ़ यू आर अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आप प्रोवाइड कर रहे हो कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट्स और टूलिंग टू एनी टोल मैन्युफैक्चरर्स इन बॉन्डेड जोन, सो यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर 5 years। तो अगर आप नॉन रेसिडेंट हो और आप इंडिया में कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट सेल कर रहे हो इन बॉन्डेड जोन, तो आपको 5 years तक इनकम टैक्स नहीं देना है। एज यू ऑल नो कि टैक्स में बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं, तो मैंने उन चेंजेस को 8 points में डिवाइड किया है। सो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहला लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। तो इंटरेस्ट ऑन मोटर एक्सीडेंट क्लेम। तो अगर गवर्नमेंट आपको कोई कंपनसेशन दे रही है इन अकॉर्डिंग्स टू मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, एंड कंपनसेशन देने में अगर कुछ डिले हो जाता है तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट भी देती है। तो उस इंटरेस्ट पे पहले टैक्स लगता था, बट एज ऑफ नाउ न्यू बजट अब आपको उस कंपनसेशन वाले इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं देना होगा,
वो आपका जो इंटरेस्ट है वो टैक्स से एग्जम्प्ट हो गया है. तो दिस वॉज अ वेरी नाइस चेंज. नाउ सेकेंड पॉइंट, दैट इज TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. तो TCS के रेट्स में रिडक्शन हुआ है. तो सबसे पहला, ओवरसीज़ टूर पैकेज. अगर आप कहीं फॉरेन घूमने जा रहे हैं तो उस पर पहले 5 से 20% का TCS कटता था, बट नाउ इट इज़ रिड्यूस्ड टू 2%. बहुत मेजर चेंज आया है. वो सिर्फ 2% का TCS कटेगा. अगर आप ओवरसीज़ टूर पैकेज ले रहे हैं तो उस पर सिर्फ TCS 2% कटेगा. देन एजुकेशन एंड मेडिकल पर्पसेस अंडर LRS 2% का TCS वहाँ कटेगा. अगर आप एजुकेशन या मेडिकल पर्पस के लिए फॉरेन जा रहे हैं अंडर LRS स्कीम की जो लिमिट होती है वो $2.5 लाख की होती है, तो उस पर TCS सिर्फ 2% कटेगा. द थर्ड पॉइंट, फॉर्म 15G और 15H. अगर आपकी इनकम कम है या इफ़ योर इनकम इज़ वेरी लेस, तो आप डिपॉजिटरी के थ्रू एक फॉर्म फाइल कर सकते हैं ताकि कंपनी आपका TDS ना डिडक्ट करे या फिर कम डिडक्ट करे. ये रेलिवेंट है फॉर CMSL एंड टैक्स फॉर बोथ. सो फोर्थ पॉइंट, रिटर्न ड्यू डेट्स की जो डेट्स हैं वो उसमें अमेंडमेंट आया है, यानी उसमें चेंजेस आए हैं. तो जो बेसिक ITR होती है जैसे कि सैलरी की या फिर जो भी बेसिक ITRs होती हैं, तो उनकी डेट्स हो गई है ऑन और बिफोर 31 जुलाई. ITR 1 या 2 की डेट्स अब 31 जुलाई हो गई है. एंड इन PGBP अगर आपका स्मॉल बिजनेस है और आपकी ऑडिट नहीं होती है तो आपके लिए वो डेट है 31 अगस्त फॉर फाइलिंग योर रिटर्न्स. एंड अगर आपका बिग बिजनेस है और आपकी ऑडिट होती है तो आपके लिए डेट है 31 अगस्त. फिफ्थ पॉइंट, तो अगर आपने अपनी इनकम कम दिखाई है, दैट इज़ अंडर रिपोर्टिंग, तो उसके लिए आपको 50% की पेनल्टी लगेगी. एंड इन द केस ऑफ मिस रिपोर्टिंग का मतलब आपने अपनी इनकम ही डिस्क्लोज नहीं की है, तो पहले आपके ऊपर 2% की पेनल्टी लगती थी जो कि अब रिड्यूस होके 100% हो गया है. सिक्स्थ पॉइंट, अर्लियर बायबैक में शेयर होल्डर्स पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स लगता था जो कि ज़्यादा था, बट अब शेयर होल्डर पर टैक्स लगेगा अंडर कैपिटल गेन हेड, तो जिससे टैक्स का बर्डन थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है. नाउ सेवेंथ पॉइंट, मैट विल बी एग्जम्प्टेड फॉर ऑल नॉन रेसिडेंट्स जो कि टैक्स पे करते हैं अंडर प्रेजेंटिव टैक्स. एंड मैट के जो टैक्स रेट है वो भी रिड्यूस हो गया है. पहले इट वॉज 15%, नाउ इट इज़ 14%. तो मैट में जो भी नॉन रेसिडेंट्स हैं जो कि टैक्स पे करते हैं इन द प्रेजेंटिव टैक्स में, तो उनके लिए मैट एग्जम्प्ट हो गया है. सो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा ICDS, दैट इज़ इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, जो कि अब डिलीट हो गया है सिलेबस से, तो एक ये चेंज था. So I tried covering all majority amendments which will be applicable from December 26 onwards. Hope you like it. And आपने सुना होगा कि सिगरेट लिकर कॉस्टली हो जाएगी. या हो जाएगी क्योंकि पहले सिगरेट और लिकर पे जो NCCT लगती थी, ड्यूटी लगती थी, वो 25% थी, जो कि अब इंक्रीज़ होकर 60% हो गई है. एंड इस वजह से सिगरेट कॉस्टली हो जाएगी. एंड मेडिसिन फॉर कैंसर पेशेंट के प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी. एंड इसकी वजह से कैंसर पेशेंट की जो भी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, उनके जो प्राइसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे. ओके, सो दिस वॉज अ स्मॉल बजट एनालिसिस फॉर all students who are preparing for professional courses. I tried my best to cover only relevant topics which we all should be aware as a student. And if you guys like this information, so do like this video, share with your friends and subscribe to my channel for more such content. And अगर आपको detailed analysis चाहिए, you want कि थोड़ा सा और topics like fiscal deficit, revenue deficit, तो आप उन topics के लिए you can refer to DG सर वीडियो. एंड उन्होंने बहुत अच्छे से बजट डिकोड किया है, उन्होंने सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं. सो यू कैन रेफर टू हिज वीडियो. मैंने भी उन्हीं का वीडियो देखकर सिर्फ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट किया है. एंड उनकी वीडियो की लिंक आई विल बी गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट. सो थैंक यू so much for watching this video. Keep loving, keep supporting and keep studying.